हार्दिक आभार माननीय सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री संजय जाजू जी। सम्मानीय अतिथिगण, उत्कृष्टता को सम्मानित करने के सुनहरे पलों की ओर बढ़ते हुए अब 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का वितरण प्रारंभ करते हैं। अत्यंत कृतज्ञ भाव से मैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से विनम्र आग्रह करती हूं कि कृपया पुरस्कार प्रदान करने के लिए मंच पर आगे आएं। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया। And may I also request Honorable Minister Shri Ashwini Vaishnav and INB Secretary Shri Sanjay Jaju to kindly join Honorable President for the distribution of awards. पुरस्कार वितरण के क्रम में सबसे पहले सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। This award aims to promote understanding, appreciation and critique of cinema as an art form to further develop it. Additionally, it aims to encourage the dissemination of the significance of cinema and related activities to the public through book reviews. इस श्रेणी में प्रथम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर आमंत्रित हैं श्री उत्पल दत्ता, जिन्हें उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित स्वर्ण कमल से सम्मानित किया जा रहा है। Shri Utpal Datta is awarded for his significant and wide-ranging critical writings on cinema, with a particular focus on Assamese language, where he explores its social, cultural, and technical aspects. सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं श्री उत्पल दत्ता। यह फिल्म द सी एंड द सेवन विलेजेस को विशेष उल्लेख का सम्मान पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं डॉक्टर इतिरानी समतना। Ladies and gentlemen, the film depicts the stories of displaced coastal communities in Odisha, documenting their loss and resilience in the face of climate change. Personal agency woven into the narrative. गैर फीचर फिल्म श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक श्री पीयूष ठाकुर प्राप्त कर रहे हैं स्वर्ण कमल। और अब मंच पर आमंत्रित हैं फिल्म के निर्देशक कामाख्या नारायण और साथ ही निर्देशक सुश्री नीलाक्षी मेधी को भी रजत origin story of a popular traditional dance in a thought-provoking journey of identity and heritage. निर्देशक सुश्री शिल्पिका बोजोलाई अपना पुरस्कार ग्रहण करते हुए और सर्वश्रेष्ठ emotional depth. The film crafts a moving narrative about a young man's transformation from a romantic youth to a lifelong tradition known as Pushkara. A breathtaking choreography that breaks gender norms and breathes new life into classical form. सर्वश्रेष्ठ गीत लेखन का राष्ट्रीय पुरस्कार गीतकार श्री कासरला श्याम कुमार को तेलुगु फिल्म बलगम के लिए उनके द्वारा कलबद्ध गीत और ओरो पल्ले तोरू के लिए प्रदान किया जा रहा है। The award recognizes lyricist's vivid portrayal of rural life, capturing universal themes of home, generational bonds, heartbeat of a village with cultural intimacy. हिंदी फिल्म एनिमल के संगीतकार श्री हर्षवर्धन रामेश्वर को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के तौर पर चयनित किया गया है। आप प्राप्त कर रहे हैं सिल्वर लोटस। Fighting ghosts in your head. Do you even realize that? मैं ghost से लड़ता नहीं हूं, उन्हें खा जाता। Harshvardhan Rameshwar, awarded for creating a background score that serves as a relentless undercurrent of dread, amplifying the primal rage, emotional chaos, and fractured psyche of its protagonist. सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए संगीत निर्देशक श्री जीवी प्रकाश कुमार को तमिल फिल्म वाती के लिए रजत कमल का पुरस्कार।
The award is given for creating a soulful Vathi, the rustic Nadodi Manan, and the inspiring One Life. Each composition pulsates with feeling of narrative intent, thereby elevating the film's emotional journey. हिंदी फिल्म सैम बहादुर में अपने मेकअप की कला का बखूबी प्रदर्शन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मेकअप का पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री श्रीकांत जगन्नाथ देसाई। The film is recognized for its stirring tribute to courage, integrity and patriotism through the life of Field Marshal Sam Manekshaw, evoking a deep respect for India's military legacy. सर्वश्रेष्ठ वेशभूषाकार कॉस्ट्यूम डिजाइनर का पुरस्कार हिंदी फिल्म सैम बहादुर ने किया है अपने नाम। 3 कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स ग्रहण कर रहे हैं ये पुरस्कार। सबसे पहले मंच पर पधार रही हैं कॉस्ट्यूम डिजाइनर सुश्री निधि गंभीर। मुझे और मेरे सोल्जर्स को इसी की ट्रेनिंग मिली है। आप राजनीति संभालिए जिसकी आपको ट्रेनिंग मिली है। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का अवार्ड ग्रहण कर रही हैं सुश्री निधि गंभीर। और मंच पर आमंत्रित करती हूं सुश्री दिव्या गंभीर को। आपको भी जाता है बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का पुरस्कार फिल्म सैम बहादुर के लिए। इस पुरस्कार के तीसरे विजेता हैं श्री सचिन अनंत लोवलेकर। आप भी प्राप्त कर रहे हैं सिल्वर लोटस। Sam Bahadur recreates the mid-20th century Indian military attire with historical accuracy, from uniforms and medals to ornate civilian wear, while emphasizing the authenticity and period detail. धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया एवं सम्मानित अतिथिगण। और अब मैं ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, रेलवेज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्री अश्विनी वैष्णव जी से विनम्र आग्रह करती हूं और उन्हें संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूं। माननीय मंत्री जी। हम सभी को अपने जीवन से इंस्पायर करने वाले महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, साथी सेक्रेटरी संजय जाजू जी, आशुतोष जी, शेषाद्री जी, गोपाल कृष्ण पाई जी, और इस बड़े हॉल में एक से बढ़कर एक फिल्मी दुनिया के सभी महानुभाव, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जूरी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इतना फेयर और थॉटफुल सिलेक्शन किया आपने, और उसके बाद में जितने भी लोगों ने आज अवार्ड्स जीते हैं, गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल। सबसे ज्यादा अप्लॉज होना चाहिए आज रियल ओजी मोहनलाल जी के लिए। तंगलुरु उग्रम एक्टर एंड ट्रू लेजेंड, गिव अ लाउड शाउट आउट। हॉल में आवाज सफिशिएंट नहीं है, और तेज। ये हुई ना बात। कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत क्लियर विजन है कि भारत को कंटेंट क्रिएशन का हब बनाना है। हमें लास्ट इस तरह के एनएफए अवार्ड में आपके सामने एक प्रॉमिस किया गया था कि विश्व के सामने हम एक नए फॉर्मेट में एक नए प्लेटफॉर्म को क्रिएट करेंगे और वेव्स
मुंबई में हाल ही में आप सबके सामने आया। बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, उसमें कई देशों से the ministers had come, then there were CEOs from many companies. One CEO of a very large multinational, he said, I had come with an expectation of a third world conference, but I am going back with a benchmark for the first world. There were 1 lakh plus participants from 100 plus countries, 140 sessions, 3,000 plus B2B meets. Earlier our creators used to go abroad. Now the world is coming to India. We are following up the work which was done there. अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में, साउथ कोरिया में, कनाडा में, सब जगह वेव्स बाजार के माध्यम से our content creators product is now finding new markets. एक आपको और प्रॉमिस किया था, we will start a new series of institutions called IICT. The first IICT, Indian Institute of Creative Technologies, is now functioning in Mumbai in the NFDC campus, and very soon we will start the construction work of the main campus in the film city. बहुत सुंदर उसका डिजाइन बना है, कई राउंड उसके आइट्रेशंस मैं खुद बैठा हूं, and it's going to be an amazing institution going forward. IICT में ऑलरेडी 17 कोर्सेज स्टार्ट कर चुके हैं, पार्टनरशिप्स हो चुकी है एनवीडिया के साथ, मेटा, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, WPP, इन सब के साथ ऑलरेडी पार्टनरशिप्स हो चुकी हैं, एंड वेरी गुड फैसिलिटीज आर बीइंग क्रिएटेड. फ्रेंड्स, एक नया कार्यक्रम लेना है. प्रधानमंत्री जी ने हम सबको इंस्पायर किया है मेक इन इंडिया से, एंड मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड. अब एक कार्यक्रम हाथ में लेने का प्रयास कर रहे हैं. जितने भी फिल्म इंडस्ट्री में इक्विपमेंट यूज होते हैं, ये कैमरा है बड़े बड़े, और भी कई तरह के इक्विपमेंट हैं, इन इक्विपमेंट को मेक इन इंडिया करना है. साथ ही साथ आज की हमारी मिडिल क्लासेस के लिए, यंग जनरेशन के लिए एक बड़ा कार्यक्रम बनाना है, लाइव कॉन्सर्ट इकोनॉमी का. प्रॉपर उसका पॉलिसी सपोर्ट होगा, यूनिफॉर्म गाइडलाइंस होगी, इजी परमिशंस होगी, एंड दैट विल क्रिएट अनदर बिग वेव इन द ओशन ऑफ क्रिएटर्स इकोनॉमी. फिल्मों की दुनिया है, फिल्मों वाला आज कार्यक्रम है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म, मॉडल स्टेट सिनेमा रेगुलेशन रूल्स. हर राज्य के अपने अपने रूल्स होते हैं. कैन वी हार्मोनाइज देम, कैन वी सिंप्लीफाई देम. जैसे देश में प्रधानमंत्री जी ने 1500 आर्काइक लॉज को हटाया, वैसे ही फिल्म के परमिशन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, उनके लिए एक मॉडल स्टेट सिनेमा रेगुलेशन रूल्स बनाने का काम भी हाथ में लिया है. साथियों, these are the most exciting times in our country's history. We are, first time in our history, we have got a big goal in front of our country to be with buried truths, delivering a performance of rare poignancy, imbued with quiet power, subtle humor, and profound vulnerability. और अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार हिंदी फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे में मिस रानी मुखर्जी के नाम. आपने इस फिल्म में अपने प्रभावशाली अभिनय से दी है उल्लेखनीय प्रस्तुति. I need my children, sir. I die, sir. Without my children, I die. Rani Mukherjee, the iconic actress known for her portrayal of resilient women characters, delivers an exceptional performance in Mrs. Chatterjee versus Norway, a film that portrays maternal love, resilience, cultural conflict with piercing emotional clarity and unwavering authenticity. सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार ग्रहण करते हुए रानी मुखर्जी, जिन्हें फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए प्रदान किया जा रहा है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सम्मान.
जवान में अपनी सशक्त प्रस्तुति के लिए श्री शाहरुख खान चुने गए हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। आपको प्रदान किया जा रहा है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सम्मान। अच्छा हूं या बुरा हूं, पुण्य हूं या पाप हूं, ये खुद से पूछना, क्योंकि मैं भी पाप हूं। Shahrukh Khan, ladies and gentlemen, globally renowned actor and producer, delivers a powerhouse performance in Jawan, bringing to life a hero who battles not only enemies but also social boundaries. सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ग्रहण करते हुए श्री शाहरुख खान। And a great master of his craft. श्री मोहनलाल जी को दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की ढेरों बधाई। Thank you, Honorable President and distinguished guests. Many congratulations. माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से मैं सादर अनुरोध करती हूं कि कृपया आज के सुअवसर पर अपने आशीर्वचनों से हमें प्रेरित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। इस समारोह में उपस्थित सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, निर्णायक मंडल के अध्यक्षगण तथा सदस्यगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, सभी को नमस्कार। मैं आज के सभी पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई देती हूँ। मोहनलाल जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उन्होंने कमल से कोमलतम और कठोर से कठोरतम भावों को सहजता से प्रस्तुत किया है और द कंप्लीट एक्टर की उनकी छवि बनी है। मुझे ये जानकर सुखद आश्चर्य हुआ है कि उन्होंने महाभारत के चरित्र कर्ण पर आधारित एक लंबे संस्कृत नाटक कर्णभारम में कर्ण भूमिका निभाई है। एक तरफ उनकी वानप्रस्थम जैसी गंभीर फिल्म है तो दूसरी तरफ अनेक अत्यंत लोकप्रिय फिल्में हैं। मुझे जानकारी मिली है कि मोहनलाल जी के पुरस्कार की घोषणा होने पर लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। ये इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने अनगिनत दर्शकों के दिल में अपनी जगह बनाई है। देवियों और स्वजनों, जहां विश्व के सबसे बड़े फिल्म उद्योग के उत्कृष्ट प्रतिनिधि उपस्थित है, आप सबसे अधिक प्रभावी और लोकप्रिय कला माध्यम से द्वारा विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र तथा सबसे अधिक विविधतापूर्ण समाज का परिचय करता है। हम कह सकते हैं कि इस सभागार में आप सबके जरिए पूरे भारत के स्वरूप दिखाई दे रहे हैं। हर वर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में आने से पहले मुझ में ये जिज्ञासा भी रहती है और उत्साह भी रहता है कि इतने मेहनत से जो फिल्म बनाया गया है उनमें क्या दिखाया गया है, कैसे दिखाया गया है और किस उद्देश्य से दिखाया गया है। मुझे ये जानकर खुशी होती है कि सिनेमा से जुड़े सभी लोगों के एक भारतीय चेतना है, इंडियन सेंसिटिविटी है, जो सभी स्थानीय सदस्यों को भी जुड़ते हैं। जैसे अनेक भाषाओं में भारतीय साहित्य की रचना होती है, ऐसे ही अनेक भाषाओं, बोलियों, क्षेत्रों और स्थानीय परिवेशों में भारतीय सिनेमा विकसित हो रही है। हमारी फिल्में स्थानीय होने के साथ साथ राष्ट्रीय भी है। देवियों और स्वजनों, महिलाओं पर केंद्रित अच्छी फिल्में बन रही है,
और पुरस्कृत भी हो रही है। ये बहुत अच्छा सामाजिक संकेत है। हम सभी देखते हैं कि महिलाएं किसी न किसी स्तर पर पॉवर्टी, पैट्रियार्ची या प्रिजुडियस से जूझते हैं। आज पुरस्कृत फिल्मों में माताओं द्वारा बच्चों के नैतिक निर्माण की कहानी, सामाजिक रूढ़ियों का सामना करने के लिए महिलाओं का एकजुट होना, घर, परिवार और सामाजिक व्यवस्था की जटिलताओं के बीच महिलाओं की स्थिति तथा पैट्रियार्ची की विशेषताओं के विरुद्ध आवाज उठाने वाली साहसी महिलाओं की कहानियों पर आधारित फिल्में शामिल हैं। मैं देश की सभी बहनों और बेटियों की तरफ से ऐसे संवेदनशील फिल्मकारों को साधुवाद देती हूँ। मैं अपना अनुभव और अनुरोध दोहराती हूँ कि जिस तरफ शिक्षण संस्थानों के पुरस्कार समारोह में विजेता बेटियों की संख्या अधिक होने में विकसित भारत की झलक दिखाई देती है, वही प्रयास फिल्म पुरस्कार में भी होना चाहिए। मैं मानती हूँ कि समान अवसर मिलने पर महिलाओं ये असाधारण प्रदर्शन कर सकते हैं। कला और सिनेमा जैसे क्षेत्र में भी उनकी सहज प्रतिभा के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। फिल्म से जुड़ी ऐसी उत्कृष्ट महिला प्रतिभाओं को पर्याप्त मान्यता मिलनी चाहिए। जूरी के सेंट्रल पैनल और रीजनल पैनल्स में भी महिलाओं का समुचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस बात पर जितना भी जोर दिया जाए वो कम है कि सिनेमा केवल उद्योग नहीं है, और समाज और देश को जागरूक बनाने का तथा देशवासियों को अधिक संवेदनशील बनाने का शक्तिशाली माध्यम भी है। लोकप्रिय होना किसी फिल्म के लिए अच्छी बात है, हो सकती है, लेकिन लोकहित में होना, विशेषकर युवा पीढ़ी के हित में होना और भी अच्छी बात है। एक फिल्म को बनाने में बहुत से लोग कठिन परिश्रम करते हैं। मैं पुरस्कार विजेताओं से अनुरोध करती हूं कि वे अपनी टीम के प्रत्येक सदस्यों को, सेट पर काम करने वाले श्रमिक भाई बहनों तक मेरी बधाई पहुंचाएं। आपकी सफलता में उन सबका योगदान रहता है। उनके प्रति सम्मान और संवेदनशीलता का भाव रखना फिल्म उद्योग के वर्क कल्चर का हिस्सा होना चाहिए। आज के पुरस्कार विजेताओं में एक तरफ जाने माने स्टार एक्टर्स और फिल्म मेकर्स है, तो दूसरी तरफ टैलेंटेड यूथ है। मैं आप सभी को फिर से बधाई देती हूँ। युवा प्रतिभाओं में संवेदनशीलता और जागरूकता देखकर भारत के सुदृढ़ भविष्य के प्रति आस्था मजबूत होती है। देवियों और स्वजनों, बच्चों पर, विशेषकर बेटियों पर केंद्रित फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिए मैं इस पुरस्कार समारोह से जुड़े लोगों की सराहना करती हूँ। आज 6 बाल कलाकारों को पुरस्कार दिए गए हैं। मैं आप सभी प्रतिभाशाली बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद देती हूँ। गांधी ताता चेट्टू नामक तेलुगु फिल्म में एक छोटी सी बच्ची एक पेड़ को बचाने के लिए सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। ऐसी कहानियों बच्चों में तथा पूरी समाज में अच्छे जीवन मूल्यों तथा पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संचार करता है। इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म का पुरस्कार एक प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित सामची आई नामक फिल्म को दिया गया है। 81 वर्ष पहले वर्ष 1954 में आयोजित फर्स्ट नेशनल फिल्म अवार्ड में उसी उपन्यास पर आधारित सामची आई नाम की ही एक मराठी फिल्म को ऑल इंडिया बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया था। उस उपन्यास में एक माँ अपने बच्चों को जीवन के आदर्श सिखाती है, अपनी करुणा और स्नेह से उसके व्यक्तित्व को बनाती है। ऐसी कहानी पर आधारित 2 फिल्मों को
8 दशकों से अंतराल पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इससे ये स्पष्ट होता है कि पिछले 80 वर्षों में फिल्म बनाने की टेक्नोलॉजी और तरीका भले ही पूरी तरह बदल गए हैं, लेकिन माँ की ममता और मानवता के संदेश की ताकत अपनी ही प्रभावी है। परिवार से जुड़े भावनाएं भारतीय फिल्मों में पूरी तरह जीवंत है। फिल्म उद्योग से जुड़े सभी लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि विश्व स्तर पर भारतीय फिल्मों को और अधिक स्वीकृति मिले, उनकी लोकप्रियता बढ़े तथा मान्यता और सम्मान भी मिले। मुझे विश्वास है कि फिल्म उद्योग से जुड़े सजग और प्रतिभाशाली लोग इस दिशा में अवश्य आगे बढ़ेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।